Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you advanced financial management subject. And we will continue our topic, that is calculation part of the weighted average cost of capital. So today in this session, we will continue our sum. Example number 10. From the following information, calculate WACC on the book value weight and the market value weight. Information is given. Tax rate 35%. Second information, the company can sell 10 years debenture at the rate of 12% interest having the face value of rupees 1000. Underwriting fee is what? 10%. Another information, 15 rupees 15 as a perpetual dividend, sorry, preference dividend having the face value of rupees 100 sold at rupees 2 underwriting fees per share. Equity share is currently selling at rupees 123 and the firm expected to pay rupees 15 per share as a dividend. Growth rate is 6%. It is expected that the company also pay rupees 3 as a underwriting fee. Capital structure is given. Sources, book value in the market value. Long-term debt 10 lakh, 12 lakh. Preference shares 3 lakh 50, 4 lakh 50. Equity shares 50 lakh. रिटेन अर्निंग 5 lakh. एंड ये दोनों को कंबाइन वैल्यू 1 lakh. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू कंबाइन दिया है, दैट इज व्हाट 1 करोड़. क्लियर? तो बेस्ड ऑन दिस सम we can find out, we have to find out cost of debt, cost of preference shares, cost of equity and the cost of retain earning with the help of this information. Clear? चल फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जो भी दिया होगा डिबेंचर. सो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट. फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट. तो कॉस्ट ऑफ डेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है तो आपको पढ़ के सब करना पड़ेगा. टैक्स रेट 35%. T is what? 35%. The company can sell 10 years debenture, यानी N, 10 years, at the rate of 12% interest, so I, 12%, having the face value 1000. And the underwriting fee is what? Flotation cost, 10%. इतना information दिया आपको. ऐसा समझ में? Now, based on this information, it is a redeemable debenture, so require the RV, that is redeemable value. So RV कुछ नहीं दिया, redeem कैसे हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं दिया. So what we have to assume? Redeem at par यानी at face value, that is what? 1000 rupees. Clear? Now redeemable है, so again it require SP selling price. Now selling कैसे दिया? वो भी नहीं दिया, so SP again at par से हुआ होगा, that is what face value से, that is what 1000 rupees से. but always selling price में flotation cost क्या होता है? माइनस होता है. flotation cost क्या होता है? माइनस. so 1000 minus 100 is equal to what? 900. clear? so RV SP सब मिल गया. now interest 12% of face value, 12% of face value, so interest का अमाउंट क्या बन जाएगा? 120 रुपीज़. हाँ, नहीं तो आप फास्ट में 12 ले लेते हो. चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के डी? आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन एन आर वी माइनस एस पी अपॉन 1 अपॉन 2 आर वी प्लस एस पी. इंटरेस्ट 120, टैक्स रेट 35%, 1 अपॉन एन 10, आर वी 1000 minus SP 900. 1 upon 2 RV 1000 plus SP 900. So 120 का 120, 1 minus 0.35, that is 0.65, plus 1 upon 10 का 1 upon 10, 1000 minus 900, 100 divided by 1 upon 2, and total of that 1900. 120 into 0.65, that is 78. 1 upon 10 into 100, 10 divided by 950. 1 upon 2 into 1900. So 88 divided by 950. So cost of debt क्या आएगा? 0.0926. Clear?
नाउ KD के बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स तो क्या मिलेगा KP तो KP में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया ₹15 एज अ ₹15 इज अ प्रेफरेंस डिविडेंड। सो प्रेफरेंस डिविडेंड यानी DP रुपीस दे दिया तो डायरेक्टली ₹15 हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹100। सो फेस वैल्यू 100 sold at ₹2 underwriting fee per share. Sorry, face value of ₹100 sold at ₹2 underwriting fee as per share and a flotation cost ₹2 is given, not percentage. Now इतना information दिया तो which type of preference shares it is irredeemable. So simple सा formula KP is what DP upon SP. Now SP यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, so SP आपको क्या करना पड़ेगा, SP पार्ट से होगा तो फेस वैल्यू से होगा माइनस उसके ऊपर 2% क्या है, सॉरी ₹2 क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट, सो 100 माइनस 2 तो अब SP क्या हो जाएगा, नेट सेल प्रोसीड 98। सो DP 15 डिवाइडेड बाय 98 सो 0.1531। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये SP समझ में है ना, SP कैसे करना है, SP कैसे हुआ था, पार से फेस वैल्यू माइनस उसके ऊपर क्या लगता है, फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो थर्ड इंफॉर्मेशन इक्विटी शेयर्स तो के ही मिलेगा। नाउ इक्विटी शेयर इज करंटली सेलिंग एट ₹123, सेलिंग यानी P0 करंट प्राइस 123 एंड फॉर्म expected to pay ₹15 per share as a dividend. Expected यानी D1 15, growth rate is 6%, so G 6%. It is expected that the company also pay ₹3 as an underwriting fee. Okay, and flotation cost ₹3 is given. So PO क्या बन जाएगा 123 minus 3, so PO क्या बन जाएगा 120. क्लियर? तो सिंपल सा फॉर्मूला K is what D1 upon PO plus C. D1 कितना है 15, P 120 plus growth rate 0.06 ना। Now 15 divided by 120 that is 0.125 plus growth rate 0.06. So total of that 0.185. Clear all of you? Now equity हो गया, यहाँ पे रिटेन अर्निंग है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आएगा। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू व्हाट KE, हम लोग के ले लेते हैं ना, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज व्हाट KE। बट कौन से केसेस में, जब फ्लोटेशन कॉस्ट दिया होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया होता है तब। यहाँ पे तो फ्लोटेशन कॉस्ट है, सो हम लोग को अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा D1 अपॉन PO प्लस G। सो D1 15, सो यहाँ पे PO क्या ले लेना है, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने से पहले वाला दैट इज 123 प्लस ग्रोथ रेट 0.06, so 0.1220 plus 0.06 that is 0.1820। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, सब कॉस्ट कैलकुलेट हो गया, सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे WACC एज पर दी बुक वैल्यू। सो फर्स्ट WACC एज पर बुक वैल्यू वेट। चलो वो टेबल तो आपको अभी याद रह गया होगा, सोर्सेस, अमाउंट, प्रपोर्शन, कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट, है ना। चलो सोर्सेस में क्या दिया है वो देखते जाओ। लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया। नेक्स्ट इज व्हाट प्रेफरेंस शेयर इज गिवन। थर्ड क्या दिया इक्विटी शेयर, एंड फोर्थ क्या दिया रिटेन अर्निंग। चलो अमाउंट डाल दो, बुक वैल्यू है ना, तो सिंपल सा जो दिया है वही, डेप्ट 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स
3 lakh 50, equity 50 lakh, and return earning 5 lakh. चलो, total of that 68 lakh 50,000. अभी प्रपोर्शन निकालना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट. सो किससे करना है? 10 लाख डिवाइडेड बाय 6850, 0.15, 0.15. Preference shares 3 lakh 50 divided by 685, 0.05, 50 lakh divided by 685, 0.73, and 5 lakh divided by 685, 0.07. ओके, सो टोटल आ गया 1. क्लियर? चलो, अभी कॉस्ट, डिबेंचर का कॉस्ट कितना आया था? 0.0926 आया था. प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट KP 0.1531 आया. इक्विटी शेयर का कॉस्ट 0.185 और इसका कॉस्ट 0.1820. अभी आपको खाली मल्टीप्लाई करना है. 0.0138 0.007655. आप 4 डिजिट भी ले सकते हो. 0.13505, 0.01274. ये आपको टोटल करना है. $0.1693. So WACC is equal to 0.1693 into 100 is equal to 16.93%. Clear? Now next is what? WACC as per market value weight. यहाँ पे अभी मेन आपको नोट लिखना है कि when combined market value of equity share and return earning is given, combined value. So in that case, in case of market value weight, we have to consider return earning because यहाँ पे return earning का amount अलग से नहीं दिया है. So combined effect is given. So combined effect दिया होगा तो वो केसेस में भी market value weight में return earning आपको consider करना पड़ेगा. Okay? तो यहाँ पे एक नोट्स आपको याद रखना है. Retained earning are not shown separately since the market value of equity share represents the combined market value of equity share and retained earning. In short, when combined value is given, okay, then retained earning will be shown in
मार्केट वैल्यू वेट। तो सिंपल सा नोट याद रख लो कि व्हेन द कंबाइंड वैल्यू इज गिवन, रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू में कंबाइंड वैल्यू इज गिवन, देन रिटेन अर्निंग विल बी शोन इन द मार्केट वैल्यू वेट। ना कितना वैल्यू होगा 1 करोड़ में, इक्विटी कितना होगा, रिटेन अर्निंग कितना होगा, ये हम लोग को पता नहीं है। सो ये हम लोग प्रपोर्शन निकाल के उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो प्रपोर्शन कैसे निकलेगा। सो बुक वैल्यू वेट में क्या दिया, इक्विटी, बुक वैल्यू में इक्विटी कितना दिया 50 लाख, रिटेन अर्निंग कितना दिया 5 लाख, क्लियर। तो 50 लाख एंड 5 लाख उसका टोटल क्या बनेगा 55 लाख। अभी इक्विटी का प्रपोर्शन क्या होगा, तो हम लोग पहले प्रपोर्शन निकालेंगे। प्रपोर्शन कैसे निकलता है 50 लाख डिवाइडेड बाय 55 लाख, एंड रिटेन अर्निंग का प्रपोर्शन क्या निकलेगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 55 लाख। ओके ना 50 लाख डिवाइडेड बाय 55 लाख करोगे ना तो 0.909, ओके, एंड 5 लाख डिवाइडेड बाय 55 करोगे तो 0.09। इन शॉर्ट इक्विटी का प्रपोर्शन 91% है एंड रिटेन अर्निंग का प्रपोर्शन 9% है। तो हम लोग को कंबाइंड वैल्यू दिया है, सो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। सो टोटल वैल्यू कितना दिया 1 करोड़। सो 1 करोड़ का 91% इक्विटी है, दैट मीन्स 91 लैक्स इक्विटी है, एंड रिटेन अर्निंग 1 करोड़ है, उसका 9% है, यानी 9 लाख रिटेन अर्निंग बन जाएगा, यानी हम लोग को मार्केट वैल्यू मिल गया। तो ये कैसे निकाला, क्लियर हुआ। बुक वैल्यू में 50 लैक्स इक्विटी का दिया था एंड 5 लैक्स रिटेन अर्निंग, सो टोटल क्या 55। सो प्रपोर्शन निकाला 50 डिवाइडेड बाय 55 लैक्स, सो 0.909 यानी 91% इक्विटी है, ओके, एंड 5 लैक्स यानी 9 लाख रिटेन 9% रिटेन अर्निंग है। सो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे वैल्यू, मार्केट वैल्यू। सो इक्विटी 1 करोड़, कंबाइंड वैल्यू 1 करोड़ दिया था इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। सो 1 करोड़ में से 91% इक्विटी है और 1 करोड़ में से 9% रिटेन अर्निंग है। सो 91 लाख इक्विटी बन गया एंड रिटेन अर्निंग 9 लाख बन गया। नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट, बिकॉज हर एक आपको वैल्यू मिल चुकी है। सो फर्स्ट क्या होगा, सोर्सेस, देन आफ्टर अमाउंट, देन आफ्टर प्रपोर्शन, देन आफ्टर कॉस्ट एंड देन आफ्टर वेटेड कॉस्ट। अभी सोर्स सब लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग, बिकॉज हम लोग ने नोट में लिखा है व्हेन द कंबाइंड वैल्यू इज गिवन ना, वी हैव टू कंसीडर द रिटेन अर्निंग ऑल्सो। डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट 12 लाख, ये 4,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी हम लोग ने फाइंड आउट किया 91 लाख एंड रिटेन अर्निंग 9 लाख। सो टोटल आप करोगे 1 करोड़ 16,50,000 आएगा, क्लियर। अभी हम लोग प्रपोर्शन निकालेंगे ना, प्रपोर्शन निकालेंगे। सो आप 2 डिजिट वाले में करना है तो कर सकते हो। सो 12 लाख डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 165 0.10 divided by 0.04, $0.78, $0.08 टोटल हो गया 1। ओके हो गया। चलो डेप का कॉस्ट सेम ही है ना, 0.0926
preference shares 0.1531, equity share 0.185, and the return earnings 0.1820. ओके, मल्टीप्लाई करना है 0.10 इंटू 0.0926, 0.00926, 0.04 इंटू 0.1531, 0.006124, 0.78 into 0.185, 0.1443, 08 into 0.1820, 0.01456 टोटल करना पड़ेगा। $0.1742। ओके, सो WACC क्या बनेगा 0.1742 इंटू 100, दैट इज 17.42%। आया समझ में ये सम्स कैसे करना था। सो यहाँ पे नोट याद रखना है कि व्हेन इन मार्केट वैल्यू वेट combined value of equity and the return earning is given, then we have to consider the return earning when we calculate the market value weight. Clear? Bye, take care. In the next video we will continue the next sum.